Hello dear students, welcome back. Today we are going to start our session with excess and efficient demand part 2. In this video we will study about the measures to correct excess and efficient demand. In the last video, that is in part 1, we have studied about the meaning, impact and the reasons of excess and deficient demands. Now, today we are going to discuss how we'll correct these types of demands like excess demand and deficient demand. See, in every economy, it is not good thing for excess demand and deficient demand. If there is any excess and deficient demand happens in any economy, the equilibrium condition goes on up or down. Clear? So, to correct this equilibrium condition, we must have to correct these types of excess and deficient demand. So we are having two types of methods to correcting these type of efficient and deficient demands, yani excess and deficient demand. First measure we have fiscal measures, another we have monetary measures. एक हमारे पास fiscal measure है और another हमारे पास क्या है monetary measures है. We will discuss all the things like fiscal measures and monetary measures one by one. So first, we have fiscal measures in which we will study about the government revenue, government expenditure or spendings, how government revenue and government expenditure, that is spending, will help to correct these excess and deficient demand. We will study government revenue, in which we will study about the taxes, public debt, efficient financing, and government spendings like government will spend on making dams, making roads, providing electricity, providing a battery infrastructure to our economy. Okay, so these are the things that government will provide us, and we will provide the government also, like revenue. Okay, so these terms will helpful in correcting the excess and deficient demand. So we will discuss on this point. And another, we have monetary measures, in which we are having two terms, quantitative measures and qualitative measures. Quantitative measures, we are having points bank rate, repo rate, open market operations, reverse repo rate, legal reserve requirements. And qualitative measures, we are having imposing margin requirements, moral suasions, selective credit controls. So these are the terms, these are the points, these are the measures, policy measures by the government, by the banking system, by the monetary system in our economy to correct the deficient demand or excess demand. So we will take it one by one. In this video today, we will take only fiscal measures, and in next video I will explain all the terms of monetary measures. So let's start with the fiscal measures first. Let's proceed with the policy measures. First policy measure we have fiscal policy, that is fiscal measure or fiscal policy. The meaning of fiscal policy is it is a budgetary policy or policy related government revenue or expenditure. ये क्या होता है फिस्कल पॉलिसी? एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स, उनकी जो इनकम है, उनकी जो रेवेन्यू है, उसके ऊपर टोटली क्या होती है, बेस्ड होती है. यानी इट इज अ काइंड ऑफ बजटरी पॉलिसी इन विच द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट will help to correct the excess and deficient demand of any economy. Clear? So first we have government revenue. Government revenue, how government revenue will help us to correct the excess and deficient demand. So let's proceed. First is taxes. First point we are having taxes. Taxes is the compulsory payment made to the government by whom on it is imposed. एक ऐसा रेवेन्यू का सोर्स गवर्नमेंट का, जिसे हम लोग कहते हैं हमारी कंट्री में या किसी भी अदर कंट्री में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है जो रेवेन्यू का हमारी इकोनॉमी में, वो भी गवर्नमेंट का क्या होता है, टैक्स होता है. यानी कि टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है they will earn more and more, they will generate more and more revenue. Okay, so we are having two types of taxes, direct taxes and indirect taxes. डायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा टैक्स होता है ऑन विच जिस व्यक्ति के ऊपर में टैक्स लगाया जाता है दैट पर्सन विल पे, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसके ऊपर लगाया जाता है वो ना पे करके इसका बर्डन को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं ऑन अनदर पर्सन.
ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स इज एन इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसकी इनकम होती है वो टैक्स को पे कर रहा होता है। हियर वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज जीएसटी। नाउअडेज वी आर यूजिंग जीएसटी in purchasing goods and services. Okay, so that is GST, यानी कि goods and services taxes. Okay, so how these taxes will correct the efficient or excess and deficient demand. So let's start with how it controls excess demand. ये excess demand को कैसे control करता है? Okay, so we are having impose higher taxes. अगर गवर्नमेंट क्या करे, ज्यादा से ज्यादा हायर टैक्सेस को इंपोज करना स्टार्ट कर दे, दैट मींस ये क्या करना शुरू करे, जो टैक्स रेट है उनको क्या कर दे, बढ़ा दे। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा, इट विल रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है काइंड ऑफ इनकम व्हिच इज डिस्पोज ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर जो हाउस होल्ड सेक्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक अपनी इनकम का जो पार्ट डिस्पोज कर देते हैं, यानी खर्च कर देते हैं, किसके ऊपर में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, ठीक है। तो उसकी ये बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हायर टैक्सेस बढ़ेगा, यानी टैक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, टैक्स के रेट अगर हमारे बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। टैक्सेस ज्यादा पे करने का मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरी जो इनकम जनरेट हुई दैट इज 1000 रुपीज, 1000 रुपये को मुझे क्या करना है, डिस्पोज करना है या तो सेव करना है। तो अब मुझे क्या करना है, इस 1000 के इनकम पे मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है सबसे पहले। तो 1000 के ऊपर में गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं कि उसने चार्ज किया 100 रुपए का टैक्स, क्लियर। तो मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम बची वो 1000 के बजाय कितनी बची, केवल 900 रुपए। तो 900 रुपए बचने का मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है वो केवल और केवल अपनी ओवरऑल इनकम का केवल 900 रुपए क्या कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, यानी कि खर्च कर सकता है, क्लियर। तो इसकी वजह से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर्स का वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल फॉल। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम ही नहीं बची। पूरी 1000 रुपए थी, 1000 में से 100 रुपए तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, अब बचे कितने, 900, क्लियर। तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन का जो क्रेडिट है वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स के रूप में पेमेंट कर दिया, क्लियर। सो एडी इज रिड्यूस्ड, इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है मार्केट में, इकोनॉमी में, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी 1000 रुपए की डिस्पोजेबल इनकम अब कितनी हो गई, केवल 900, यानी कि 100 रुपए आपके पास बच गए। वो कहाँ चले गए, सेविंग के टैक्सेस के रूप में चले गए। इसका मतलब आप कितना खर्च कर सकते हो, केवल 900। जहां आपके पास में मॉनेटरी इनकम यानी मनी जो है वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई आपके पास में कम हो जाएगी, वहां आपकी एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो वहीं पे एक्सेस डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, that how taxes will control the problem of excess demand। जो excess demand की condition है उसे taxes किस तरीके से control करता है। Now we are moving to the how it controls deficient demand। अब ये deficient demand को कैसे control करता है, deficient means जहाँ पे demand आपकी क्या हो रही होती है, कम। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉलिसी मेजर लेकर आना है जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसी टैक्स को यानी कि नॉट इंपोज हायर टैक्सेस, अब हम क्या करें, जो टैक्सेस है उसे ज्यादा ना करके ठीक कम से कम इंपोज करें। जैसे मैंने कहा था 1000 रुपए हमारी इनकम थी, ठीक है। उस 1000 रुपए में मैंने 900 पहले बताया था कि डिस्पोजेबल इनकम मेरी बच गई, ठीक है, यानी 100 रुपए मैंने टैक्स दे दिया। अब मैं अभी कहता हूं मैं टैक्स केवल 50 रुपए रख रहा हूं, तो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच जाएगी, 950 रुपए। तो अब क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, जब उनके पास 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उस 50 रुपए को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए अगेन खर्च कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होने की वजह से उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, लोगों के पास पैसे आने शुरू हो गए, पैसे बचना शुरू हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो सारा का सारा पार्ट अपनी डिमांड पे लगा देंगे। सारा का सारा जो मनी है, अपनी जो इनकम है, उसे कहां पे यूटिलाइज करेंगे, फॉर रेजिंग मोर एंड मोर डिमांड। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड क्या होना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस जैसे से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी
वैसे वैसे हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या करेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फिस्कल मेजर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। Let's proceed for the next point of government revenue, that is public debt or borrowing. Whenever government needs some money, okay, they will get the money from the public, they will borrow the money from the public by issuing their securities. वो अपनी securities के against पे क्या करता है, public से borrowings यानी money को लेता है, ठीक है। यानी मनी को लेने का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेचा या उनको उधार पर गिरवी रख दिया या कुछ भी ऐसा किया जिसके बदले पब्लिक ने उसको क्या दिया, मनी दे दिया। यानी कि पब्लिक के पास में जो मनी है, मनी की सप्लाई हो क्या हो गई, कम हो गई। अब वो मनी किसके पास आ गई है, गवर्नमेंट के पास में, ठीक। नाउ लेट्स सी हाउ पब्लिक डेट और बोरोइंग विल हेल्पफुल टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो मूव टू द How public debt controls excess demand. Public debt excess demand को कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, whenever government should increase their public borrowings, public debt, जैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, अपने public borrowing या public debts को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि वहां से क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो बोरोइंग करता है। तो जैसे उसने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बोरोइंग्स की, तो लोगों के पास जो मनी सप्लाई थी, मनी थी, वो क्या किया, उसने ले लिया। किसने, गवर्नमेंट ने अपने पास। और जहां गवर्नमेंट ने अपने पास वो मनी सप्लाई को रख लिया, तो वहां जो पब्लिक है उनके पास में मनी बचा ही नहीं खर्च करने के लिए। यानी कि उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जहां डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो गई, ठीक है, वहीं पे उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि कंज्यूमर्स के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज उनके पास मनी बचेगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मनी उन्होंने किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दी। अब जब मनी पब्लिक के पास है ही नहीं, कंज्यूमर्स के पास है ही नहीं, तो वो किस तरीके से अपनी डिमांड को रेज करेंगे। जहां वो अपनी डिमांड को रेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी एक्सेस डिमांड क्या थी आपकी, उस समय उस एक्सेस डिमांड को वो क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और जहां एक्सेस डिमांड कम होगा, ठीक है, वहीं पे हमारी जो एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है, जो एक इन्फ्लेशनरी गैप को बना रहा था, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक डेट की वजह से या पब्लिक डेट से हम लोग एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक से सारा पैसा ले लिया, अब पब्लिक के पास कुछ बचा ही नहीं। जब पब्लिक के पास कुछ बचा ही नहीं, पैसा बचा ही नहीं, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास है ही नहीं, तो वो डिमांड कहां से करेंगे, वो कंजम्पशन कहां से करेंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कहां से परचेज करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जो उनकी डिमांड है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम। यानी एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड कम हुई, वहीं पे जो एक्सेस डिमांड थी, यानी बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे अपने आप ही कंट्रोल हो गई, कम। क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट, हाउ पब्लिक डेट्स कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। किस तरीके से पब्लिक डेट डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करता है। यानी कि जहां डिमांड बहुत कम है, हमें उसको बढ़ाना है, तो डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, लेट्स सी। यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज पब्लिक बोरोइंग्स। यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो लोगों से पैसा लेना, उधार लेना, बोरोइंग करना क्या कर देगा, कम कर देगा। जहां गवर्नमेंट ने बोरोइंग करना कम कर दिया, वहां पर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बचने लगेगी। उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो मनी उन्हीं की है, उनके पास रखी हुई है, गवर्नमेंट ने कोई बोरोइंग्स की नहीं है। जहां गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स नहीं की, तो मनी सप्लाई कहां पर, पब्लिक के पास में बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी उनके पास डिस्पोजेबल इनकम क्या है, बहुत ज्यादा होगी। जहां डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होगी, तो किसी के भी जेब में, यानी कंज्यूमर के या प्रोड्यूसर के जेब में जब पैसे होते हैं, तो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसे खर्च करता है। यानी कि वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को जनरेट करेगा। जहां डिमांड जनरेट हो गई, ठीक है, वहीं पे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, अगेन बढ़ जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो डेफिशिएंट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरीके से पब्लिक डेट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट एंड लास्ट point of government revenue, that is deficit financing. Okay, it refers to issue of more currency to meet the budgetary deficit.
What is deficit financing? Deficit financing is the issue of more currency or new currencies to meet the budgetary deficit of the government. Whenever government is having deficit budget in the economy, then it will issue the new currency or more currency to meet out the deficit budget. Okay, so this is the process, this is the deficit financing in which we increase the money supply in the economy to meet out the deficit of the budget. ठीक है, बजट के डेफिसिट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। जहां मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी नई करेंसी, फ्रेश करेंसी हमारे पास में इशू होती है, तो वो किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड की जो एक्सेस कंडीशन है या डेफिशिएंट कंडीशन है, उन्हें कैसे करेक्ट करती है, कैसे कंट्रोल करती है। लेट्स हैव अ लुक हाउ डेफिसिट फाइनेंसिंग कंट्रोल्स एक्सेस डिमांड। किस तरीके से जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, यानी कि जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होने का जो रीजन है, कारण है, उसकी वजह से किस तरीके से एक्सेस डिमांड हम लोग कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिमांड है मार्केट में, उसे कैसे कम करना है, कैसे कंट्रोल करना है। लेट्स हैव अ लुक हियर। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इट हैज टू reduce the deficit financing। उसे क्या करना चाहिए, नई करेंसीज, जो फ्रेश करेंसीज को जो वो इशू कर रहा है, यानी मनी सप्लाई को जो मार्केट में इशू कर रहा है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों के पास मनी सप्लाई आ गई, यानी मनी आ गया, तो उसकी वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जहां उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई, वहां वो डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, यानी न्यू करेंसीज को जो इशू करने का प्रोसीजर है, उसे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना चाहिए। जहां उसने रिड्यूस कर दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग, वहीं पे जो मनी सप्लाई है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस। और जहां मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई, तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि जो उनकी डिस्पोजल इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां परचेजिंग पावर है, डिस्पोजल इनकम कम हुई, यानी कि उनके पास मनी ही नहीं बचा, तो वो खर्च क्या करेंगे। तो जहां उनके पास मनी नहीं बची, डिस्पोजल इनकम नहीं बची, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, वहीं पे जो एक्सेस डिमांड थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो रिड्यूस हो जाएगी और किस लेवल पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो इस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग को अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, तो वो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकता है। नाउ हाउ डेफिसिट फाइनेंसिंग कंट्रोल्स डेफिशिएंट डिमांड। किस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करता है। इन दिस कंडीशन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट हैव टू इंक्रीज द डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा नई करेंसीज, ज्यादा से ज्यादा करेंसीज को, यानी मनी सप्लाई को मार्केट में उतारना पड़ेगा, जिससे जो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। सी, government should increase the deficit financing, it will increase the money supply। deficit financing जैसे ही इशू हुई, यानी नई करेंसी जैसे ही बनी, जनरेट हुई, इशू हुई, उसकी वजह से हमारे पास में जो मनी सप्लाई है वो एकदम से बढ़ जाएगी। जहां मनी सप्लाई बढ़ गई, वहीं पे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम। वो क्या करेगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देगा, यानी कि उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जहां उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो जो हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो जाएगा, राइज करने लगेगा, यानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जहां कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर बढ़ा, लोगों की डिमांड बढ़ी, नीड्स बढ़ी, वहीं पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड की जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन पे डिमांड कम हो रही थी, वो ऑटोमेटिकली क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और डेफिशिएंट डिमांड अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी, यानी वो उस लेवल पे आ जाएगी जिस लेवल को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग इस तरीके से एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करता है। दीज आर द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। नेक्स्ट सेक्शन वी विल टेक गवर्नमेंट expenditure or spending. Let's see how government spending, government expenditure will control the excess and deficient demand. Now let's proceed to the next point of fiscal deficit, that is government spending or expenditure. As you all know कि government हम लोग के लिए बहुत सारे spendings, बहुत सारे खर्चे करती है जो कि हमारे welfare के लिए होते हैं, like
पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स, मेकिंग डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें बनाती है। किसके लिए? हमारे वेलफेयर के लिए। वो हमारे लिए एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाती है, जिसमें बहुत सारा मनी का जो पार्ट है गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्च करती है? लोगों के एजुकेशन के लिए, उनके पब्लिक के वेलफेयर के लिए, और दे प्रोवाइड सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स टू एनकरेज प्रोडक्शंस। जो सब्सिडीज है गवर्नमेंट के ये प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कराती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके। और गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हमारे देश में कानून सही तरीके से चल सके, लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चल सके, उसके ऊपर डिफेंस के ऊपर बहुत सारा खर्चा करती है, मनी को खर्च करती है, स्पेंड करती है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे ऐसे मनी का जो पार्ट है वो अपनी रेवेन्यू का जो पार्ट है वो किसके ऊपर खर्च करती है? हम जैसे लोगों के ऊपर, यानी पब्लिक के वेलफेयर के लिए। क्लियर? सो हाउ these government expenditure will helpful to control or correct the excess demand condition and deficient demand condition. Let's have a look here. How expenditure, यानी government expenditure controls excess demand. किस तरीके से government expenditure है वो excess demand को, यानी कि उस condition में जहाँ पे demand बहुत ज़्यादा है उसे control करती है या correct करती है। We have government should reduce expenditure on non-developmental works. ऐसे expenditure जो कि non-developmental works के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे खर्चे जिनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिनसे हमारी इकोनॉमी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर उनके ऊपर खर्च करना कम कर दे। जैसे मैंने कहा हमारे घर के सामने जो रोड बन रही है, ठीक है, या फिर मैंने कहा नालियाँ बन रही हैं, या गवर्नमेंट जो हमारे लिए प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरह की फैसिलिटी, लाइट की फैसिलिटीज है, यानी कि जो तार है, वायर है, जो हमारे यहाँ पे खंभों से हमारे घर तक लेकर आ रहे हैं, वो सारे के सारे खर्चे अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से ना करे, ठीक है, तो उसके लिए वो सारी फैसिलिटीज को पाने के लिए पब्लिक को अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ेगा। जहां पब्लिक ने अपने पास से पैसा खर्च किया, अपनी जेब से पैसा लगाना शुरू किया, तो वहां पे पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जहां मनी लोगों के पास बचेगा नहीं, मनी क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग अपने घर के आगे रोड बनवा रहे हैं, ठीक है, प्लांटेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं अननेसेसरी चीज़ों को परचेज करने के लिए या एक्स्ट्रा डिमांड को करने के लिए। तो उस वजह से उनकी जो डिस्पोजल इनकम है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहाँ डिस्पोजल इनकम कम हुई वहीं पे उनकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जहाँ एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो गई, ठीक, तो वहीं पे जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है वो अपने भी क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव हाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स डेफिशिएंट डिमांड। किस तरीके से ये डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट या कंट्रोल करता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन नॉन डेवलपमेंटल वर्क, ठीक है, जो भी नॉन डेवलपमेंटल वर्क है, यानी कि रोड डैम्स बनवाना है, कुछ भी इस तरह के काम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है पब्लिक को, अगर इस तरह के खर्चे गवर्नमेंट अपने पास से करने लग जाए, ठीक है, तो वहां पे लोगों का जो पैसा है, खुद का पैसा जो है, डिस्पोजल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? बचना शुरू हो जाएगी। जहां वो पैसा, वो मनी क्या हुई? बचना शुरू हुई, यानी उनकी डिस्पोजल इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। तो वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल इनकम को क्या करेंगे? डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे, यानी खर्च करने की कोशिश करेंगे। जहां उन्होंने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, वहीं पे एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जो डेफिशिएंट डिमांड थी, जहां पे डिमांड बहुत कम थी, वहां पे जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जगह पे खर्च कर रहा है और मेरे पैसे क्या है? बच रहे हैं। जहां मेरी मनी, मेरे पैसे बच रहे होंगे, वहां पे अपने पैसों को मैं क्या करूंगा? अदर कम्युनिटीज के गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर उसको क्या करूंगा? खर्च करूंगा। तो मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में क्या होने लग जाएगी? धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो उसकी वजह से जो मेरा डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा, यानी वो बढ़ जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके से, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट या कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आप लोगों ने देखा कि हाउ फिस्कल मेजर्स, यानी फिस्कल मेजर्स से हम लोग किस तरीके से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर रहे थे। वी विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो in which we will take monetary measures, monetary policies of controlling or correcting excess and deficient demand. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग monetary measures के ऊपर स्टडी करेंगे, देखेंगे उसको। So wait for my next video.